सो आज हम लोग मेनली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कशन करेंगे, है ना। सो आज मेनली हम लोग करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, I'm audible. I'm audible. शायद ये प्रॉब्लम मैंने क्लास में पहले मैंने व्हाट्सएप पे शायद बताया था इसका उसको याद है। सब आपने बता दिया, मुझे लगा शेयर है और मैं फिर लिख रहा हूँ। इसमें मैंने जो होमवर्क में छोड़ा है प्रॉब्लम वो ट्राई करते रहिए आप। NH2 पे नहीं, NR2 पे, नॉट NH2। जो ग्रुप बल्कि होगा उसी पे लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। So the question is, we have to arrange them in, tell me please. सो मेनली इस प्रॉब्लम में एक OH ग्रुप लगा हुआ और एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है। सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, सबसे पहले जितने भी ग्रुप्स लगे उसका नेचर समझ लेंगे। NO2 का नेचर क्या है, ये -I इफेक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है थ्रू पुलिंग इफेक्ट, राइट। सिग्मा बॉन्ड को पोलराइज करता है ड्यू टू पुलिंग इफेक्ट, जिसको बोलते हैं -I इफेक्ट। एंड NO2 अगर रेजोनेंस बना रहा है रिंग के साथ या किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा थ्रू रेजोनेंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। सो बेसिकली mainly two effects operate predominantly in case of acidic strength and basic strength, that is -I effect, +I effect, -M effect and +M effect. So in this case nitro NO2 group is acting as a electron withdrawing group, so simply we can say that EWG. NO2 is acting as a EWG, electron withdrawing group, through -I -M effect. Basically NO2 group is a powerful electron withdrawing group, and how it
how it gain the electron or pull the electron towards itself via two process, minus I effect and minus M effect, right? So since there is presence of NO2 group, minus I effect will operate strongly if NO2 is nearby, if NO2 will be near to that of OH group, okay? But resonance effect will not be depend on the distance. Always remember, plus M effect or minus M effect will be distance independent. That is also called as resonance effect. So simply we can say that resonance effect is independent of distance. Whatever the distance will be, it will operate in the same effect, okay? So effectiveness of minus M or plus M will be same, whatever will be the distance or separation between the groups, but minus I and plus I will be distance dependent. So NO2 group is acting here as a minus I effect, so it will electron withdraw, it will pull the electron through minus I effect and it will be distance dependent. So while deciding the acidic strength, let's try to decide. This group have no NO2 group. No NO2 group, right? The rest of the three molecules, first, second and third, contains NO2 group, but fourth compound does not contain NO2 group. So we can say that the acidity of fourth compound will be relatively less because there is no presence of electron withdrawing group, right? Now let us see between second and third. In second we can say that there will be no resonance between OH and NO2 because they are meta-related. In third, it is para-related, so they will be resonance-related as well. In third compound, we can see that OH and NO2 groups are para-related, hence they are resonance-related as well. तो रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा, OH का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रेजोनेंस के थ्रू कहां पे चला जाएगा, NO2 के पास चला जाएगा, है ना? So due to resonance, NO2 is gaining electron from OH, hence NO2 will increase acidity up to a certain level, or it will increase the acidity up to a very high level, okay? Okay, so what I'm trying to say is para-related groups are resonance related, hence they will increase the acidity much more effectively compared to that of meta-related groups, right? Since NO2 is gaining the electron here, you may rejoin, so sound quality will be better. Yeah, so जब पैरा रिलेटेड ग्रुप होगा NO2 का जब रिलेशन क्या होगा, पैरा रिलेटेड होगा OH के साथ, तो इसका बेसिसिटी इसका एसिडिटी मेटा रिलेटेड वाले ग्रुप से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि OH का इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कौन, NO2 ग्रुप थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट, राइट? बट मेटा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना? तो फर्स्ट का बाद में देखेंगे, इतना तो क्लियर है कि थर्ड का एसिडिटी सेकंड से ज्यादा है और फोर्थ का थर्ड और सेकंड से कम है ना? नाउ लेट अस कंसीडर द फर्स्ट वन सिचुएशन। तो फर्स्ट में माइनस रेजोनेंस भी हो रहा है ऑर्थो रिलेटेड होने की वजह से, राइट? ओके, रेजोनेंस इज देयर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, राइट? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या हो सकता है वो समझेंगे। इसका माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट तो स्ट्रांगली ऑपरेट हो ही रहा है, और एसिडिटी इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, एसिड में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा?
decreases now, so most probably third will be most acidic, then first will be acidic, then second will be acidic, then fourth will be acidic. Yeah, in first one there will be hydrogen bonding, right? So can you check the answer please? Yeah, let me repeat the order. It should be third greater than first, greater than second, greater than fourth. Is it the option? Okay, hence third greater than first, greater than second, greater than fourth. Here there will be hydrogen bonding. And it is acting minus I, minus M here. This is also acting minus I, minus M here. Sorry, in this case minus M is not operating, only minus I is acting here. Here minus I, minus M is acting here, but here only minus I is operating. Okay. In the second one, resonance will not be there between NO2 and OH because they are meta-related, right? Hence, we have got this as acidity order. What is the acidity order? This is the acidity order. Any problem? Can you repeat the question, please? It depends. In most of the cases, para-related groups, if the electron withdrawing group is present at para position, will be more acidic compared to that of meta-related. Mostly 99% केसेस में यही होगा कि पैरा-रिलेटेड वाला जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा कंपेयर टू दैट ऑफ मेटा-रिलेटेड. उसका मेन रीजन ये है कि मेटा-रिलेटेड ग्रुप में रेजोनेंस नहीं होगा, बट पैरा-रिलेटेड वाले ग्रुप में रेजोनेंस होगा. बाकी अगर किसी कंपाउंड से ऑर्थो वाले से कंपेयर कर रहे हैं तो इट विल डिपेंड, बिकॉज समटाइम्स ऑर्थो वाले में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं भी होता है. एंड समटाइम्स इन ऑर्थो रिलेटेड ग्रुप्स SIR इफेक्ट ऑपरेट्स ड्यू टू विच प्लेनरिटी ऑफ द existing compound or existing substituent will be lost with the ring, and hence again the resonance will not be possible. It will be depending, but एक बात तो फिक्स है कि जो पैरा रिलेटेड वाला होगा उसका एसिडिटी ऑलवेज 99% केसेस में बोल सकते हैं कि मेटा रिलेटेड से ज्यादा होगा, अनटिल एंड अनलेस अगर कोई बड़ा एक्सेप्शन नहीं आ जाता है तब तो 99% हम लोग बोल सकते हैं कि पैरा रिलेटेड वाले का जो ग्रुप होगा उसका एसिडिटी मेटा रिलेटेड वाले ग्रुप से ज्यादा होगा, है ना. Can you please speak loudly, Adit? I'm facing some difficulty to hear you. सो देखिए मैं समझ रहा हूँ कि डिफिकल्टी कहाँ पे आ रही है. आप एक रूल एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि ऐसे प्रॉब्लम में कभी भी क्या आ गया, या जेईई मेंस में सवाल आ गया या फिर कहीं भी क्वेश्चन आ गया एडवांस में, तो उसको रिलेट कैसे करेंगे, एंड हाउ टू मेक 100% श्योर कि व्हाट विल बी द एसिडिटी ऑर्डर एंड बेसिसिटी ऑर्डर इन केस ऑफ सच केसेस, है ना. तो इस केस में एक बात का श्योरिटी हम लोग बना सकते हैं. पहला श्योरिटी क्या बना सकते हैं कि अगर जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसके साथ जो दूसरा ग्रुप लगा हुआ है वो अगर पैरा पे है और कंडीशन ये होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तब उसका उस कंपाउंड का एसिडिटी मेटा वाले रिलेटेड से ज्यादा होगा. बट ये तभी ऑपरेट करना है जब NO2 जैसे ग्रुप लगे हुए रहेंगे. NO2 की जगह पे CHO हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप, वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना. साइनाइड हो सकता है, साइनाइड इज आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. अमाइड हो सकता है CONH2, वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पावरफुल. सो
इस तरह के जितने भी ग्रुप्स हैं, एसिड हैलाइड हो सकता है COCl, वो भी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर पैरा पे हैं तो स्पेशली ये लोग एसिडिटी क्या करेंगे, ये ग्रुप्स काफी बढ़ा देंगे कंपेयर टू दैट ऑफ मेटा ग्रुप। द मेन रीजन इज कि मेटा रिलेटेड आपस में रेजोनेंस करता ही नहीं है, उसका कॉन्जुगेशन OH वाले ग्रुप के साथ बन नहीं पाता है, बट पैरा वाला फ्रीक्वेंटली रेजोनेंस करेगा। तो मेन प्रीडोमिनेंट फैक्टर क्या है हमारा, रेजोनेंस, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट। बट यस, while deciding the final acidity order हमें दोनों को कंसिडर करना है, -m को प्रायोरिटी बेस पे करना है और उसके बाद -i भी चेक करना है या +i भी चेक करना है ना। तो यहाँ पे ये ऑर्डर आने का 3 या 4 फैक्टर हो गया। फैक्टर्स को मैं काउंट करा देता हूँ। पहला फैक्टर हो गया पैरा रिलेटेड रेजोनेंस होगा, मेटा रिलेटेड रेजोनेंस नहीं होगा। फोर्थ वाले कंपाउंड में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। फर्स्ट वाले कंपाउंड में आप ध्यान से देखिए कि उसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिससे थोड़ा सा उसका एसिडिटी घट गया। और -i इफेक्ट वैसे उसका ज्यादा होगा वहां पे, क्योंकि वो OH ग्रुप के ज्यादा क्लोज में है या पास में है ना। तो -i इफेक्ट तो उसका बढ़ रहा है कंपेयर टू दैट ऑफ पैरा वाले ग्रुप, लेकिन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रिलेटिवली एसिडिटी उसका थोड़ा सा कम हो गया है ना। सो दीज आर द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस प्रॉब्लम। बट अपने आप में ये प्रॉब्लम अच्छा है एंड कॉन्सेप्ट भी इसके साथ बहुत ही अच्छा एसोसिएटेड है। सो आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम विद दिस, यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, जस्ट अ सेकंड। तो जो ऑर्डर आपने लिया है वो है, पहला आपने लिया है साइक्लोपेंटेन, दूसरा लिया है साइक्लोपेंटेन, एम आई राइट? ये थर्ड वाला कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोपेंटाडाइईन। सो यहाँ पे हमारे पास 3 कंपाउंड है और तीनों में एसिडिटी कंपेयर करना है। एसिडिटी कैसे कंपेयर करेंगे, डू यू हैव एनी आइडिया? सो हमारे पास डायरेक्ट तो कोई मेथड नहीं है एसिडिटी कंपेयर करने का। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसमें तो हर जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सिर्फ एनालॉगस दिखाने के लिए मैं ये 2 हाइड्रोजन को दिखा रहा हूँ, है ना। और मैं क्या करने वाला हूँ, हमें डायरेक्ट कुछ पता नहीं है, तो सब में मैं बेस डाल के इसको ट्रीट करूंगा, OH- के साथ रिएक्शन करा दूंगा, है ना। एंड उसके बाद क्या करेंगे, सभी के प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी चेक करेंगे, राइट। तो अगर इस पे OH- डाला तो मोस्टली रिएक्शन नहीं होगा। अल्केन पे आप OH- डालेंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, है ना, बिकॉज अल्केन्स आर हाईली अनरिएक्टिव टुवर्ड्स बेस, क्योंकि उसमें कोई फैक्टर नहीं है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है। तो अगर रिएक्शन होगा भी तो हाई टेम्परेचर पे होगा, अंडर विगरस कंडीशन होगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आप अल्केन में बेस डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत ही स्लो होगा, चांसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है चांसेस, है ना। इस वाले में डालेंगे तो यहाँ भी मोस्टली रिएक्शन होगा तो नहीं, बट स्लोली थोड़ा करेगा रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन होगा, अगर प्रोडक्ट स्टेबल बन ही नहीं रहा तो रिएक्शन नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? अल्केन पहले से ही स्टेबल है तो वो क्यों रिएक्शन करेगा बेस के साथ, उसको जरूरत नहीं है ना। हाँ, जो कंपाउंड पहले से स्टेबल है उसको रिएक्शन करने की क्या जरूरत है, जो कंपाउंड स्टेबल नहीं है वो रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये H पे अटैक कर दिया और ये ब्रेक डाउन हो गया। इसका थोड़ा मतलब बनता है रिएक्शन करने का, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड बना रहा है ना।
No, this is not aromatic. This is non-aromatic compound because this is not following Huckel's rules. ये Huckel's rule को follow नहीं कर रहा है, इसलिए aromatic compound नहीं है. But yes, there is resonance stabilization due to negative charge pi bond conjugation, right? So we can say that this product is resonance stabilized. Alright. Now let's see this one. ये इस पे अटैक करेगा और H प्लस को ले लेगा. तो सब में यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बनाया है? बाई प्रोडक्ट वाटर, है ना? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है साइक्लोपेंटाडाइईन, इस पे आपने बेस डाल दिया, H प्लस गेन करेगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीप्रोटोनेशन, मतलब मॉलिक्यूल एक H प्लस लूज कर रहा है. So this procedure will be called as deprotonation. Losing an proton or H plus ion is called as deprotonation process. So in presence of base, it will lose the H plus very easily because the product will become highly stable. So this is a very stabilizing process since the product will be a aromatic compound. अब थर्ड वाले का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा एसिडिटी का? 3, 2, 1. तो एसिडिटी ऑर्डर क्या आ गया? 3 greater than 2 greater than 1. ओके, एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? फिर निकालना है, ठीक है. सो शुड वी टेक द नेक्स्ट सम? सो एक एक ऑप्शन लिखते जाएंगे और उसमें सोचते भी चले जाएंगे कि क्या क्या है लिखना. These are the methyl group, also called as, right? Now you see, इस केस में SIR इफेक्ट ऑपरेट होगा क्या? ओके, SIR इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा बिकॉज SIR इफेक्ट होने के लिए NR2 ग्रुप होना चाहिए. ये 1 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन नहीं है, इसलिए SIR इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, है ना? या एग्जैक्टली देख लेंगे. देखिए NR2 नहीं है तो हमें इफेक्ट के बारे में सोचना ही नहीं है ना. जब तक ग्रुप NR2 नहीं रहेगा तब तक सोचना ही नहीं है, राइट? या NH2 पे एक्ट नहीं करेगा, NR2 होता तो एक्ट करता, बट यस NO2 पे एक्ट करेगा, जैसे B केस में एक्ट करेगा, राइट? मोस्टली यस. अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, दे सीम्स लाइक टू बी डिफरेंट, बट या कह सकते हैं सब. तो देख लीजिए, ये प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने पहले इसी को ले लिया. और देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ना, इस तीनों क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. तो बेसिसिटी डिसाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हमें देखना है? नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. जितना ज्यादा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा कंपाउंड का क्या होगा? बेसिसिटी होगा.
तो नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है माइनस एम इफेक्ट। कोई भी वैसा ग्रुप जो माइनस एम इफेक्ट या माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट करता है वो वहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। एंड अल्टीमेटली दैट विल डिक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड। और अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है थ्रू प्लस एम इफेक्ट या रेजोनेंस के इफेक्ट के थ्रू, तो वो उसका बेसिसिटी और बढ़ा देगा। बट इसमें आप देख रहे हैं कि सारे तीनों ग्रुप में, तीनों केसेस में NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ जो माइनस एम तो करता ही और माइनस आई भी करता है। तो देखना ये है कि कहां कहां पे इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है। यहां पे ऑर्थो इफेक्ट की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा ऑर्थो इफेक्ट, उसकी वजह से NO2 का प्लेन रोटेट हो जाएगा, है ना। 90 डिग्री से ये वाला प्लेन रोटेट हो जाएगा। कौन सा प्लेन? NO2 का प्लेन, राइट। सो NO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे? sp2 क्या है? या ड्यू टू रोटेशन about CN bond planarity of NO2 group will be lost and hence there will not be resonance anymore. Hello, I'm audible? हमने ये डिसाइड किया था कि सेकेंड वाले कंपाउंड में NO2 का ऑर्थो इफेक्ट होगा किसके साथ? दोनों मिथाइल ग्रुप के साथ, क्योंकि दोनों मिथाइल का पोजीशन कहाँ है? ऑर्थो पोजीशन पे है, राइट। तो दोनों मिथाइल का पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होने की वजह से दोनों में स्टेरिक रिपल्शन होगा और NO2 जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उसका प्लेनरिटी लॉस्ट हो जाएगा। उसका प्लेनरिटी क्या हो जाएगा? उसका प्लेनरिटी लॉस्ट हो जाएगा किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ, है ना। उसका प्लेनरिटी बेंजीन रिंग के साथ लॉस्ट हो जाएगा। हेंस रेजोनेंस जो होना चाहिए था NO2 और बेंजीन रिंग के बीच में वो नहीं होगा, वो बंद हो जाएगा रेजोनेंस, राइट। तो माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट कर सकता था NO2 ग्रुप, बट सेकंड वाले कंपाउंड में NO2 अब माइनस एम इफेक्ट करना बंद कर दिया क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है ना। So due to rotation about CN bond, polarity of NO2 group will be lost and hence there will not be resonance anymore between NO2 and benzene ring. Yeah, this is also called ortho effect. So NO2 is not operating minus M effect, right? सो सेकेंड वाले कंपाउंड में NO2 सिर्फ क्या इफेक्ट करेगा? माइनस आई इफेक्ट, जो कि उतना पावरफुल नहीं होता है। माइनस एम के कंपेरिजन में माइनस आई इफेक्ट का उतना पावर नहीं है, राइट। तो NO2 सिर्फ यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, माइनस एम आई इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा है। इसकी वजह से बेसिसिटी B का जो है वो क्या होगा? रिलेटिवली हाई हो जाएगा, करेक्ट। उसका बेसिसिटी रिलेटिवली हाई हो जाएगा। किसके कंपेयर में हाई हो जाएगा? कंपेयर टू दैट ऑफ A, है ना। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि B का जो बेसिसिटी है वो A से ज्यादा है। B का बेसिसिटी A से क्या है? ज्यादा है, राइट। सो इतना कंक्लूजन बन चुका है कि B इज मोर एसिडिक देन A, सॉरी B इज मोर बेसिक देन A, बट व्हाट अबाउट C? C का क्या होगा ऑर्डर? यहां पे NR2 होने की वजह से इसका भी प्लेन रोटेट करेगा, है ना।
तो यहाँ भी स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है जिसको बोल देंगे ऑर्थो इफेक्ट। तो नो रेजोनेंस बिटवीन NR2 एंड बेंजीन रिंग। तो सी वाले में क्या हो रहा है कि NO2 का रेजोनेंस, NR2 का जो रेजोनेंस हो सकता था बेंजीन रिंग के साथ वो नहीं हो रहा है, वो बंद हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, उसका लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में नहीं जाएगा, उसका लोन पेयर नाइट्रोजन के पास ही रहेगा एंड दैट विल बी अवेलेबल फॉर बेसिसिटी, राइट। सो मोर विल बी द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर विल बी द बेसिसिटी। सो नाइट्रोजन जो सी वाला कंपाउंड है उसका इलेक्ट्रॉन इज देयर अवेलेबल फॉर बेसिसिटी, सो उसका बेसिसिटी भी रिलेटिवली ज्यादा होगा। तो अब ओवरऑल बेसिसिटी अगर कंपेयर करेंगे तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड। बी में नाइट्रोजन का रेजोनेंस तो हो रहा है, इसका रेजोनेंस तो रिंग के साथ हो रहा है ना, उसका रेजोनेंस नहीं हो रहा है और NO2 का पोजीशन दोनों में सेम है, तो इसका रेजोनेंस हो रहा है, मतलब रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज अपीयर हियर, NH2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, A में भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, राइट। तो NH2A का बेसिसिटी सबसे कम हो गया, राइट। तो B और C में देखिए, B में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, C में पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिकॉज रेजोनेंस ही बंद हो गया, है ना। तो सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए C, राइट, उसके बाद B एंड देन A। सो द एग्जैक्ट बेसिसिटी ऑर्डर विल बी C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, राइट। दिस इज द आंसर, या ये NR2 पे भी ऑर्थो इफेक्ट NR2 पे एक्ट करेगा और वो जितने वैसे ग्रुप जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो सब पे एक्ट करेगा, CN को छोड़ के, साइनाइड ग्रुप को छोड़ के। तो यूजुअली ऑर्थो इफेक्ट एक्ट्स ऑन एल्डिहाइड ग्रुप, NO2 ग्रुप एंड एमाइड ग्रुप एंड मे बी एसिड हैलाइड ग्रुप। सो मोस्टली ये जितने भी सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो वाले जो ग्रुप है जिसका ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होता है वो सबके सब क्या बनाएंगे, ऑर्थो इफेक्ट बनाएंगे और उसका प्लेनरिटी लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन के साथ जो बॉन्ड होता है उसके अबाउट रोटेशन हो जाता है 90 डिग्री से, है ना। कितना डिग्री का रोटेशन होता है, 90 डिग्री, तो प्लेनरिटी लॉस्ट हो जाता है। यहाँ पे भी रोटेशन हुआ है 90 डिग्री का, यहाँ पे कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं हो रहा है। ए में देयर इज नो ऑर्थो इफेक्ट, राइट। कौन से वाले मॉलिक्यूल में, NH2 पे कोई इफेक्ट ऑपरेट नहीं हो रहा है, उस पर इन जनरल दो ही इफेक्ट हो सकता है, -I करता है वो और +M करता है। क्या करता है वो, -I एंड +M इन जनरल। तो कौन इंक्रीज करेगा बेसिसिटी, ऑर्थो इफेक्ट इन जनरल कोई स्टेटमेंट बनाना सही नहीं है, बिकॉज समटाइम्स इट विल इंक्रीज द बेसिसिटी, समटाइम्स इट विल डिक्रीज द बेसिसिटी, समटाइम्स इट विल decrease something and sometimes it will increase something. It will depend upon the molecular structure and the type of substituent attached to it. So we need to analyze the compound properly because there might be other effect will be operating at the same time, so we can't make a concrete rule or something like that. Okay, या सेम टू एसिडिटी। तो ऐसा कोई रूल बना देना वो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाने जैसा है कि अगर कोई रूल हमने ऐसा कोई कॉम्प्लीट बना लिया कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो उस केस में मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके गलत हो जाएंगे। तो उसमें जितने भी इफेक्ट लग रहे हैं लाइक ऑर्थो इफेक्ट, +M, -I इफेक्ट,
और भी स्टेरिक इफेक्ट लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है, रेजोनेंस का इफेक्ट लग रहा है, बहुत सारे इफेक्ट, जितने भी सारे इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं वो सारे इफेक्ट्स को एनालाइज करना मेरे समझ से जरूरी रहेगा, तभी कुछ कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, है ना। सो ये प्रॉब्लम क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ basicity, right? Okay, so should we move to the next problem? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 कंपाउंड है ना। तो इस कंपाउंड में निकालना क्या है, हमें एसिडिटी ऑर्डर निकालना है। तो एसिडिटी किस बात पे डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन जितना ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा, जितना ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा, उतना ही ज़्यादा इसका एसिडिटी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इजीली वो H+ रिलीज कर देगा, डीप्रोटोनेशन का प्रोसेस उतना ही आसान होगा। या दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि जितने भी एसिड्स हैं सबका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका एसिडिटी भी ज़्यादा होगा, बिकॉज एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, राइट। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, राइट। और 1 by 1 एनालाइज करेंगे। यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये वाला बॉन्ड रोटेट कर जाएगा, ओके। और यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से ये वाला बॉन्ड रोटेट कर जाएगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ओके। यहाँ पे कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है कहाँ पे? इसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें भी होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट। ठीक है, तो बी और डी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, सी में एक NO2 का प्लेन रोटेट कर रहा है बीच वाले का, बाकी किसी का रोटेशन नहीं हो रहा है ना। तो एक बात तो कंफर्म है कि इसका जो OH है इसका रेजोनेंस बना रहा है, रिंग सबके साथ बना रहा है ना। ये एक अच्छी बात है कि रेजोनेंस बना रहा है सबके साथ। ओके, तो दिस वे इट इज परफॉर्मिंग रेजोनेंस, राइट। तो ऐसा देखने से ऐसा क्लियर है कि डी पार्ट में क्या हो रहा है, रेजोनेंस बहुत ही ज्यादा, रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, उसका डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा है, रिंग में भी और NO2 के साथ भी, क्योंकि ऑर्थो पैरा वाले रेजोनेंस बनाएंगे OH के साथ, तो उसका बेसिसिटी, एसिडिटी नॉट बेसिसिटी, एसिडिटी बहुत ही ज्यादा होने वाला है ना। सी पार्ट, यहां भी रेजोनेंस होगा, है ना। In the similar manner, resonance is happening here as well, right? So, in D and C, एसिडिटी बहुत ज्यादा है, C में एक NO2 ग्रुप एडिशनल लगा हुआ है, ये वाला जो कि माइनस आई इफेक्ट करेगा ओनली विथ OH ग्रुप। बेंजीन के साथ तो ये -M भी करेगा, बट
OH के साथ उसका रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट करेगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है कि इसको ऐसा लिखेंगे, वो NO2 OH के साथ रेजोनेंस नहीं बना रहा है ना। मैं इसको लिख देता हूं, दिस NO2 ग्रुप is not performing a resonance with OH group, right? Because of meta position with respect to OH group, correct? So C वाले में अगर ध्यान से देखें तो उसमें NO2 का माइनस आई इफेक्ट एक एडिशनल आएगा, बाकी सारे ऑफ इफेक्ट D वाले तो ऑपरेट हो ही रहे हैं, तो C का एसिडिटी D से ज़्यादा होना चाहिए। अब B और A में कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो B में कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, रेजोनेंस हर जगह हो रहा है, दोनों के दोनों तीनों के तीनों NO2 रेजोनेंस बना रहे हैं OH के साथ, और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा वहाँ पे, है ना। लेकिन A में जो है ना, एक NO2 का फिर से रोटेशन हो गया, तो यहाँ पे भी दो ही NO2 रेजोनेंस कर पाएंगे, है ना। और इसका तो रेजोनेंस होता ही नहीं, मेटा वाले का तो रेजोनेंस होता ही नहीं है ना OH के साथ, राइट। नो रेजोनेंस, फर्स्ट में रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, किसी के साथ वो रेजोनेंस नहीं बना रहा है। तो जब किसी के साथ रेजोनेंस नहीं बना रहा है तो उसका एसिडिटी सबसे लीस्ट होना चाहिए A का, है ना। और इसमें दोनों के साथ रेजोनेंस बना रहा है, तो A का तो सबसे लीस्ट हो गया एसिडिटी। A के बारे में अभी सोचना छोड़ ही देते हैं, फायदा नहीं सोचते, क्योंकि तीनों में से किसी के साथ रेजोनेंस नहीं बना रहा है। ऑर्थो इफेक्ट हो गया, रोटेशन हो गया यहाँ पे, है ना। रेजोनेंस बना ही नहीं रहा, तो इसका जो एसिडिटी आएगा वो लीस्ट आएगा। अब कौन ऐसा ग्रुप है जिसमें तीनों के साथ रेजोनेंस बना रहा है, वो है B, है ना। B में तीनों के साथ रेजोनेंस बना रहा है, करेक्ट। तो चांसेस है कि B का सबसे ज्यादा एसिडिटी होगा, उसके बाद C का, उसके बाद D का, देन A का। तो B C D A आंसर है क्या? हाँ, Ka is directly proportional to acidity only ना। नहीं, pKa was inversely proportional, Ka is directly proportional to acidity, right? तो BCDA आंसर है क्या? हाँ बताओ, ऑर्डर बताइए ना, मुझे दिख नहीं रहा उधर ऑर्डर के। Actually, I was trying to find out the order. The most acidic is B. But overall order अगर निकालना तो लिख सकते हैं B greater than C greater than D greater than A. C में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बट B में पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बट रेजोनेंस का इफेक्ट B में ज्यादा प्रीडोमिनेंट है कंपेयर टू दैट ऑफ C, क्योंकि C में दो NO2 के साथ रेजोनेंस बना रहा है, थर्ड वाले के साथ रेजोनेंस बना ही नहीं रहा है ना। सो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया B, देन C, देन D, देन A, B C D A। कोई प्रॉब्लम है? Okay. So, should we consider the next problem? So these problems requires detailed explanation. So short information about these problems will be a little bit risky actually. So you can see that resonance effect, hydrogen bonding effect, minus I effect, minus M effect, these four effects are operating simultaneously in all these options.
Okay, so एक एक करके ऑप्शन को डिस्कशन करते चलेंगे सारे उसके। NO2. So we have to compare the basicity here and we have to find out the strongest base. So यहाँ पे देखेंगे कि सारे ग्रुप में A को छोड़ के बाकी तीन कंपाउंड में NO2 ग्रुप प्रेजेंट है जो कि स्ट्रॉन्ग क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थ्रू -m effect and through -I effect. So due to resonance effect, NO2 will withdraw the electrons from the compound and it will make the compound less basic, right? So in NO2 mainly it will decrease the basicity of the compound. So let's see. Here there is ortho effect. So this will rotate. Okay. So no more resonance between NR2 and benzene ring. रेजोनेंस ही बंद हो गया ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। किसमें? डी वाले ऑप्शन में। डी वाले ऑप्शन में ऑर्थो इफेक्ट के थ्रू रेजोनेंस बंद हो गया तो उसका इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन विल बी अवेलेबल फॉर बेसिसिटी। मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर विल बी द बेसिसिटी। तो डी में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन उसका कहीं नहीं जा रहा है, रेजोनेंस ही बंद हो गया उसका, है ना। इसका रेजोनेंस हो रहा है रिंग के साथ, इसका रेजोनेंस हो रहा है रिंग के साथ, इसका भी रेजोनेंस हो रहा है रिंग के साथ। तो ए बी सी तीनों का रेजोनेंस हो रहा है एक्सेप्ट डी। तो डी का रेजोनेंस बंद हो गया है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस नहीं होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में जाएगा ही नहीं, तो दैट इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी अवेलेबल फॉर बेसिसिटी, हेंस डी विल बी द मोस्ट बेसिक आउट ऑफ दीज ऑप्शंस। So answer is this, D. Any problem? Okay, so should we move to the next one? So should I move to the next slide? Okay, in which of the following compounds maximum steric inhibition of resonance effect will operate? What is the meaning of maximum steric inhibition of resonance? Means they are talking about ortho effect, right? So do we have to discuss this problem? It is very easy to identify the C option, right? So answer will be C, I guess. Correct now? Okay. So there is no need to discuss this problem now. Okay, so should we move to the next problem? Which of the following is a strong base? So let me write down the structure of each and every compound and then we will discuss the effect. Okay. 14th one, I think it is the
fourth last page, yeah, 14th. So we have to identify the most basic compound out of the given 4 options. So there is lone pair here, right? Also there is lone pair here. ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है ना? डी ऑप्शन है. NH2, CH3, CH3, and the D compound is NR2. So one lone pair is there here, one lone pair is here, one lone pair is here, one lone pair is here. This is double bond NH, so one lone pair is here as well. Okay. So in all of these compounds, basicity will be there due to the lone pair of electron onto their nitrogen atom or oxygen atom. Oxygen atom shows divalency here, and there will be 2 lone pair of electrons, and nitrogen is showing trivalency here and having 1 lone pair in the compound, right? नहीं, उससे बेसिसिटी को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है, उससे बेसिसिटी का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है. हमें ये चेक करना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किस पे है, बिकॉज बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज ऑन टू द नाइट्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, राइट? इन जनरल हु इज मोर बेसिक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन? नाइट्रोजन in general, in neutral condition, but in case of resonance it will depend. Okay, so we can see that resonance is happening here, right? Resonance is happening here as well. Here NH2 is donor to the ring, correct? And they will perform the resonance this way. And here NO2 will also perform the resonance. So due to resonance, we can see that कि D वाले में नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा. यहां पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा.
यहां पे ध्यान से देखिए, इसमें क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और इसमें क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, है ना। तो ए और बी में निगेटिव आ रहा है, सी और डी में पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव वाले को छोड़ देना है। बेसिसिटी हमें अगर चेक करना है तो किसको प्रेफर करेंगे, जिसमें निगेटिव चार्ज आ रहा हो। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ए एंड बी। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज, तो दोनों पे निगेटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। दोनों में दो दो डोनर लगे हुए हैं, तो दोनों पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा बेसिक होगा, नाइट्रोजन, राइट। सो बी विल बी द मोस्ट बेसिक। सो इन चारों कंपाउंड्स में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया, कंपाउंड बी, राइट। ओके, सो शुड वी मूव टू द नेक्स्ट वन? या, सो वी हैव टू अरेंज देम इन, what is the order they have arranged in 12th problem? Acidity or basicity? Basicity now. Okay, because they have not written anything. NaCO CH3, हमारे पास तीन कंपाउंड है, तीनों में से बेसिसिटी स्ट्रेंथ निकालना है, तीनों में से आइडेंटिफाई करना है कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो रूल वही है, सबसे ज़्यादा जिस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें सबसे ज़्यादा किस पे है ना। तो तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, राइट। रेजोनेंस कैसे कैसे हो रहा है ध्यान से देखिए, ये दे रहा है ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये इधर जाएगा, ये इस तरह से डिलोकलाइजेशन बनाएगा, राइट। इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दे रहा है, डिलोकलाइजेशन बना रहा है, करेक्ट। इसमें भी ऐसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डिलोकलाइजेशन बना रहा है, बट एट द सेम टाइम ये ऊपर भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, दोनों जगह दे रहा है, राइट। तो ए में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसका डिलोकलाइजेशन बेंजीन रिंग के साथ साथ COCH3 ग्रुप को भी है, तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का होने का चांसेस बहुत कम है, उसका तो डिलोकलाइज है, बहुत ज्यादा डिलोकलाइजेशन है ना। सो ए विल बी लीस्ट बेसिक, ए का बेसिक होने का सवाल ही नहीं है। तो आंसर हमारा होगा इधर बी नहीं तो सी। बी में देखिए डिलोकलाइजेशन है, सी में भी डिलोकलाइजेशन है, बट सी में एक एडिशनल प्लस आई इफेक्ट कर रहा है ये, है ना, या प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसका बेसिसिटी बी से ज्यादा होगा। तो क्या हो गया ऑर्डर, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, राइट। Any problem? I hope it is clear. So let's consider the next one. So next problem में भी basicity compare करना है, right?
Here Me stands for methyl group. Be careful. Me stands for methyl group. सेकेंड है NMA2OMe मेटा रिलेटेड। थर्ड है NMA2OMe। लेट्स सी। होना चाहिए, थर्ड में ऑर्थो इफेक्ट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 3 कंपाउंड में थर्ड में क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट, जिसकी वजह से NMe2 का रेजोनेंस बंद हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। बट ऑप्शन 1 और 2 में रेजोनेंस चालू रहेगा बिकॉज देयर इज नो ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्लेनरिटी का लॉस्ट हो जाना, है ना। तो थर्ड ऑप्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्लेनरिटी लॉस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजोनेंस बंद हो जाएगा। रेजोनेंस बंद हो जाने से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा बेंजीन रिंग को, तो उसका बेसिसिटी बढ़ेगा एक्चुअली, है ना। तो चेक कर लेते हैं। ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगा बिकॉज दोनों तरफ नहीं है, बट एक होने से भी ऑर्थो इफेक्ट तो लगेगा ही, है ना। इसका रेजोनेंस चालू है रिंग के साथ, है ना। OMe क्या है, मेटा रिलेटेड। हेंस नॉट resonance related with NMe2 group, right? Meta related, hence not resonance related with NMe2 group, correct? यहाँ पे ये जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, नाइट्रोजन को दे सकता है यहाँ पे, है ना। तो देने की वजह से इसका A का बेसिसिटी बहुत ही कम हो जाएगा बिकॉज OMe विल एक्ट एज अ डोनर थ्रू प्लस M इफेक्ट, राइट। तो OMe क्या कर रहा है यहाँ पे, प्लस M माइनस I। ये OMe क्या कर रहा है, सिर्फ माइनस I इफेक्ट, किसके साथ, NMe2 के साथ। और वहां पे OMe का तो रेजोनेंस चालू है बट नाइट्रोजन का रेजोनेंस बंद हो चुका है ना। बट बाकी सारे में B और A में रेजोनेंस चालू है नाइट्रोजन का। तो हमें निकालना है बेसिसिटी, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, A, है ना। हाँ, लोन पेयर डिलोकलाइजेशन तो है बट एक मिनट, हाँ वो भी आपका कहना सही है, वो मैंने ध्यान दिया नहीं। रिंग में है, नाइट्रोजन का डिलोकलाइजेशन है एक्चुअली, बट OMe डोनर का भी काम कर रहा है। नाइट्रोजन का डिलोकलाइजेशन यहाँ पे भी है, तो A का बेसिसिटी B से ज्यादा होगा, इतना तो कंफर्म है ना। अब चेक कर लेते हैं A और C में। तो वहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर परमानेंटली है, बट OMe का सिर्फ मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो C होना चाहिए, CAB। पहले मैं आंसर लिख देता हूं, CAB ये आंसर है क्या, कंफर्म करेंगे। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन मुश्किल था, मतलब थोड़ा सा मुश्किल था, मतलब A और C में बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं था, है ना। नहीं, A और B में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। A और C में कंफ्यूजन इसलिए है कि A में वैसे देखा जाए तो A और C में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग को, है ना।
बट वहां पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पा रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, सी में इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, तो उसका सी का इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है फॉर बेसिसिटी, तो सी सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा आउट ऑफ 3 कंपाउंड्स। सी ग्रेटर देन ए और बी का तो कुछ है ही नहीं ना कॉन्ट्राडिक्शन, वो तो लीस्ट बेसिक होगा क्योंकि उसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रीक्वेंटली, है ना। और ये OMe डोनर का भी काम नहीं कर रहा है बी में, जबकि यहाँ पे OMe पावरफुल डोनर का काम कर रहा है। मेजर फैक्टर यही है, पैरा रिलेटेड है ना ये। हाँ, तो ये पैरा रिलेटेड है इसलिए रेजोनेंस बना रहा है, ये मेटा रिलेटेड है ना, तो मेटा रिलेटेड वाला रेजोनेंस नहीं कर पाएगा NaB2 के साथ और पैरा वाला कर देगा रेजोनेंस, हेंस दैट विल बिकम more basic, so A will be more basic than B. Sorry, could you please repeat? In first one nitrogen donates its electron pair to the ring, but at the same time OMe is also donating the electron pair to NMe2, so they will cancel out each other effect, है ना। NO2 दे रहा है बट OMe से ले भी रहा है, राइट, बट B में सिर्फ दे रहा है रिंग को, OMe से ले नहीं रहा है ना। तो इसकी वजह से A का जो बेसिसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा बी के कंपेयर में, क्योंकि बी में सिर्फ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ले नहीं रहा है। ए में दे रहा है एंड साथ में OMe से ले भी रहा है इलेक्ट्रॉन, राइट। तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, है ना। सो अब ये जो दोनों सम है थोड़ा सा मगब बेस्ड टाइप का भी है, बट ठीक है। 17 ले ले पहले, आई थिंक ये वाला 17 सम हमने क्लास में शायद किया है, मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ, वो मुश्किल आएगा ही, बिकॉज शायद मेरा भी आंसर उसमें मुश्किल ही जाएगा, बिकॉज थोड़ा सा मगब बेस्ड है वो ऑर्डर, उसमें लॉजिक बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। एसिडिटी ऑर्डर में अरेंज करना है, तो एक देखिए जनरल सा हमारा स्टेटमेंट क्या है, एक जनरल रूल क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी फंक्शनल ग्रुप में बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा होता है ना। उसके बाद कौन सा आता है, एमाइड, कौन सा आता है, एमाइड। प्रायोरिटी लिस्ट भी देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का, तो उसमें यही पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक ऑर्डर होता है वो होता है एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद अमाइड आता है, देन मोस्टली इट विल बी अल्कोहल एंड देन एमीन। सो इन जनरल, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि होना चाहिए 1 greater than 4, देन 2 greater than 3। सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाना चाह रहा हूँ, बिकॉज इस तरह के समय कुछ मिलेगा नहीं डिस्कशन करके। देखिए सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है, उसके बाद अमाइड होता है, अल्कोहल होता है, देन एमीन होता है। ये जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर सी होना चाहिए। बी, अच्छा 1 2 4 3, तो किसका इंटरचेंज किया, 1 और 2 का, ऐसे हाँ 17th। आंसर इज बी क्या, हाउ कम्स,
कहीं थोड़ा हमारे पास 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, तीनों में बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है ना। कैन यू रिकॉल दिस क्वेश्चन, आपने सेंड किया था। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। तो रूल ऐसा है, नेगेटिव चार्ज will always be more favorable on more electronegative more electronegative atom, but explanation was not done, only I was told you the answer, है ना। Okay, electronegativity order will be what? Yeah, sp greater than sp2 greater than sp3, right? Hence जो बेसिसिटी होगा, आप देखिए कि ये मोर फेवरेबल, तो फेवरेबल मतलब स्टेबिलिटी की बात करें तो A इज मोर स्टेबल देन B देन C, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, बी केयरफुल। बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर इन लोगों का ऐसा ऐसा है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो इसका भी वही है ना, sp, इसका sp2 राइट, और इसका sp3। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा और इसको इधर खींचेगा, तो जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी भी उतना ही ज्यादा है। जिस भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेबिलिटी थ्रू माइनस आई इफेक्ट विल भी ज्यादा होगा, तो वो बेसिसिटी को क्या करेगा, घटाएगा, राइट। तो A greater than B greater than C is stability order, but the basicity order will be reverse of this, right? अभी जो मैंने नीचे लिखा है वो बेसिसिटी ऑर्डर है, ऊपर वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया है ना। ये तो है, लेकिन ये जो है इसके कंपेयर में ज्यादा खींचेगा ना, और sp3 के कंपेयर में ज्यादा खींचेगा। पोलरिटी थोड़ा तो है ना, sp दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तो नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि चार्ज है, आयंस है ना। हाँ, और अगर उसमें कंफ्यूजन है तो आप इसकी छोड़ दीजिए डिस्कशन, सिर्फ एक एटम का देखिए कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसका पुलिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, है ना, वो ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, राइट। दे विल बी टाइटली बॉन्ड विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, हेंस बेसिसिटी किसका ज्यादा होगा, जिसका अटैच्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो C विल बी द मोस्ट बेसिक, राइट। तो आंसर हो गया सबसे पहले C, देन B, देन A, दिस इज द मोस्ट बेसिक। तो इसका बेसिसिटी सबसे क्या हो गया, ज्यादा, राइट। Okay, so should we consider the next sum? Which of the following
मैं सेलेक्टिव प्रॉब्लम ले रहा हूँ, सारे नहीं ले रहा हूँ ना। हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, maximum electron density in the ring. Okay. रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें होगा? So the first option is मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आएगा, है ना? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आएगा, है ना? एंड C is NH2. तो बता सकते हैं इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में आएगा तीनों में, आउट ऑफ दीज थ्री कंपाउंड्स? NH2 is electron donor, right? NH2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और NO2 जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। NO2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और NH2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मतलब डोनेट करता है, राइट? और O- इज ऑल्सो अ डोनर। सो तीनों कंपाउंड में सबसे पावरफुल डोनर कौन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है? O-। इज पावरफुल डोनर, हेंस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, राइट? तो आंसर हो गया हमारा बी, करेक्ट? आई होप यू अंडरस्टूड. So can we consider the next sum? In just a moment. एक काम करते हैं, मैं इसको I guess option in 46. In 46 there are 4 compounds. They have given 4 compounds and we have to identify which of the following are non-aromatic compound. तो इन चारों में से non-aromatic compound को identify करना है ना? तो A तो aromatic है, right? और non-aromatic, तो A तो aromatic है ना? B aromatic है, C anti-aromatic है, D का देख लेते हैं, 3 6 2 8 4 12 12 इलेक्ट्रॉन्स है ना? चौदह इलेक्ट्रॉन है डी में, तो डी तो एरोमेटिक है, राइट? तो आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि ए बी डी तीनों एरोमेटिक है, सी एरोमेटिक नहीं है, है ना? तो देखिए तो आंसर सी है क्या? Okay, answer is C, right? Okay. Okay, so in which of the following pairs the first one is a strong base? पहले कार्बन आएगा, तो that's why there is a general rule, CH3 minus is more basic than NH2 minus is more basic than OH minus, right?
हेंस G में CH3NH2 इज मोर बेसिक देन CH3OH। तो 45th का आंसर हो गया A, C एंड D। B करेक्ट ऑप्शन नहीं है उसका, है ना। CH3 A, B, D, सॉरी A मैं बोलना भूल गया। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब सिंपली सबका एसिडिटी कंपेयर करना है ना। सो इन प्रॉब्लम नंबर 43 वी हैव टू कंपेयर द एसिडिटी ऑर्डर, राइट। ओके, तो कौन सा सम करना है? 33 करना है। 43 बाद में कर लेंगे क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा चेंज करना हो, टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ 24 ले लेंगे क्या अभी जरा। तो 24 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा बता सकते हैं? In the anion HCOO- the two carbon oxygen bonds are found to be of equal length. What is the reason for it? Electronic orbits of carbon atoms are hybridized. Electronic orbits of carbon atoms are hybridized. The CO bond is weaker than CO bond. The anion of HCOO- has two equally stable reuniting structure. The anion is obtained by removal of a proton from the acid molecule. Yeah, try the next one. So answer 424 problem will be C, right? Because HCOO- is called as formate ion, right? Formate ion have equivalent resonance structure. It have what? Equivalent resonance structure. So they will be having same bond length, right? तो हमने ऑर्डर देखा था ना, पोलर में अलग ऑर्डर होता था, नॉन पोलर में अलग ऑर्डर होता था। नॉन पोलर में क्या होता था? टर्शियरी एमीन मोर देन सेकेंडरी एमीन मोर देन प्राइमरी एमीन मोर देन NH3, राइट, इन नॉन पोलर एंड गैसियस फेज, राइट। बट इन पोलर फेज क्या होता था? CH3 होल ट्वाइस NH ग्रेटर देन CH3 NH2 ग्रेटर देन CH3 होल थ्राइस N ग्रेटर देन NH3, राइट। सो इसमें ऑर्डर होगा सबसे पहले 2 से चालू होगा एंड एक्वस ही लेना है अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो, है ना। सो 3 डिग्री इसने लिया ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तो 2 का 1 से ज्यादा होगा। तो आंसर सी दिया है क्या इसका? Yeah, CH3 whole twice NH will be more basic than CH3 NH2 and that will be more basic than NH2, right? तो दूसरा है ऑर्थो नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, पैरा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मेटा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? पैरा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाई? बिकॉज दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना। तो सबसे ज्यादा 2 होगा। तो 2 के बाद कौन होगा? जिसमें NO2 ऑर्थो पे लगा हुआ है, करेक्ट। तो पैरा मोर देन ऑर्थो, सो 3 ग्रेटर देन 2। तो 3 ग्रेटर देन 2 तो नहीं ऑप्शन, तो 2 ग्रेटर देन 3 ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 1, सो आंसर हो गया डी, है ना। तो ऑर्थो रिलेटेड ग्रेटर देन, पैरा रिलेटेड ग्रेटर देन, मेटा रिलेटेड ग्रेटर देन PHCOOH, राइट।
स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ऑफ कोर्स वो आंसर डी ही होगा, करेक्ट। बी में रेजोनेंस नहीं बना रहा है नाइट्रोजन, तो डी ही ऑप्शन हो जाएगा। रेट ऑफ द रिएक्शन दिस इज फास्टेस्ट व्हेन Z इज, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा जब लिविंग ग्रुप स्टेबल होगा, है ना। तो आउट ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स व्हिच इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, दैट इज Cl माइनस, ओके। So answer should be D, right? In the 29, which one of the following does not have sp2 hybridized carbon atom? Does not have sp2. Acetic acid, acetamide, bovine, एसीटोनाइट्राइड। हाँ, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें sp3 और sp है सिर्फ, है ना। एसीटोनाइट्राइड क्या होता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसमें ये sp3 है, ये वाला sp है और ये वाला भी sp है, राइट। अच्छा, due to presence of an unpaired electron, free radicals are केमिकली रिएक्टिव होना चाहिए वो, है ना। नहीं, कैटायन तो नहीं बोल सकते ना, कैटायन होता है इलेक्ट्रॉन डिफिनेशन सिमिलर टू कैटायन है, बट ऐसा नहीं बोल सकते।